Hello students, welcome back to my channel. In today's video, I am going to discuss a very important section, that is creative writing skill. This is very important from your exam point of view. Many students find this section very difficult, and they have no idea about this section. But you will get MCQs from this section in your exam, so you are supposed to watch this video very carefully and note down all the MCQs that I have covered in this section. So let us start our video. Question number 1 is what can be added in a notice bearing lost title? So there are four options. Option A, reward to the one who has lost the object. Option B, reward to the one who has found the object. Option C, reward to the one who has written the notice. And option D, all of the above. So right answer is option B, reward to one who has found the object. In this PDF, I have also shared the explanation of the answer. So this is the explanation of this answer. When you lose an item, you offer a reward to the person who finds and returns it to motivate them. लॉस्ट एंड फाउंड में जब भी आपको कोई पर्सन जो है वो आपका खोया हुआ सामान जो है उसको रिटर्न करता है, तो आप उसको मोटिवेट करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं. तो यही आपका जो क्वेश्चन था वो आपसे पूछा गया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर में हम इन चार ऑप्शंस में से किसको जो है वो अवॉइड कर सकते हैं. मींस कि फॉर्मल लेटर का इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो कि फॉर्मल लेटर का पार्ट नहीं है. तो देखते हैं. पहला ऑप्शन है सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज. सेकंड वन इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. थर्ड वन इज शॉर्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर. एंड ऑप्शन डी इज ambiguous constructions. So the right answer is option D, that is ambiguous construction. And why the option D is right? Because in formal letters must be clear and precise. फॉर्मल लेटर जो है वो हमेशा क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, एंड दे मस्ट बी प्रिसाइज होने चाहिए. एम्बिग्विटी और एम्बिगुअस मीन्स अनक्लियर मीनिंग. आपका जो लेटर है उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए. बिकॉज अगर आपका लेटर जो है वो एम्बिग्विटी है उसमें, अगर वो उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, देन इट लीड्स टू confusion and is unprofessional. So this option is the right one. Next, forward to moving to our third question. The report intends to present the event. Option A, the first hand information. Option B, the past information. Option C, the history. And option D, live proceedings. So the right answer is option A, the first hand information is the right answer. And explanation for this question is, a report is a factual account of an event, usually based on direct observation or event. रिपोर्ट जो है वो फैक्चुअल आपकी होती है, किसी भी इवेंट की फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आप उसमें देते हैं, और ये बेस्ड होती है आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की, जो और द एविडेंस. जिस सिचुएशन में आप जाते हैं उसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद आप जो है वो रिपोर्ट जो है उसको लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द लॉजिकल ऑर्डर टू राइट अ रिपोर्ट इज. रिपोर्ट जो है उसको लिखने का जो लॉजिकल ऑर्डर है वो क्या है? रीज़न, कॉज, consequences, opinions. B, consequences, opinions, cause, reason. C and option D. So the right answer is option C, that is cause, reason, consequences, and then opinions. So the explanation of this answer is that a logical flow starts with why something happened. सबसे पहले रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, why, कोई चीज़ जो है वो क्यों हैपन हुई, उसका क्या कॉज है, क्या रीज़न है. देन आफ्टर व्हाट द रिज़ल्ट वाज, उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा, कॉज और रीज़न. उसके बाद जो कंसिक्वेंस है,
and after that we conclude the report with our opinions. So this is the right sequence of report writing. So question number 5 is, where is the designation of the issuing authority written? डेजिग्नेशन जो है नोटिस में किसी अथॉरिटी का जो है इशूइंग अथॉरिटी जो नोटिस इशू करती है उसका डेजिग्नेशन जो है वो कहाँ पर लिखी जाती है? तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं जिसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, जस्ट बिलो द सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी के सिग्नेचर के नीचे उसकी डेजिग्नेशन लिखी जाती है। एंड एक्सप्लेनेशन इज, इन नोटिस द सिग्नेचर कम्स फर्स्ट, सबसे पहले सिग्नेचर आते हैं, फॉलोड बाय द नेम इन ब्लॉक लेटर, पहले सिग्नेचर आएगा उसके बाद उसका नेम आएगा इशूइंग अथॉरिटी का ब्लॉक लेटर्स में, एंड आफ्टर देन डेजिग्नेशन और जॉब टाइटल, जो इशूइंग अथॉरिटी है उनकी डेजिग्नेशन जो है वो लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिसीवर्स एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग? 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें सबसे जो है वो करेक्ट रिसीवर्स एड्रेस जो है हम एक लेटर में कैसे लिखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स। एंड इसकी जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज, इन मॉडर्न फॉर्मल लेटर्स फॉर्मेट डू नॉट यूज टू, आजकल जो है मॉडर्न वे में टू का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद द टाइटल, द एडिटर का यूज़ करते हैं, एंड देन द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर हम लोग लिखते हैं, और न्यूज़पेपर के नाम के साथ आपको पता ही है कि आर्टिकल द का यूज जो है वो किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द पर्पज़ ऑफ द ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट इज़, ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट जो है उसको लिखने का क्या पर्पज़ है? सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एनालाइज द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को हम एनालाइज करने के लिए ट्रबल शूटिंग जो रिपोर्ट है उसको लिखते हैं। ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट क्या होती है? ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट specifically refers to identifying and analyzing the cause of a malfunction or problem to find a solution, किसी भी जो प्रॉब्लम है उसका क्या कॉज है उसको फाइंड आउट करने के लिए और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो ट्रबल शूटिंग जो रिपोर्ट है उसको हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, अ शॉर्ट पैराग्राफ thanking any person or organization that gave you help in collecting data is called, डेटा कलेक्शन में कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करता है तो उसको आप थैंक यू जब करते हैं तो दिए गए 4 ऑप्शन में थे कौन सा ऑप्शन जो है उसको आप उसमें थैंक करते हैं? ऑप्शन ए समरी, ऑप्शन बी सी ग्लॉसरी, ऑप्शन सी एक्नॉलेजमेंट, एंड ऑप्शन डी इज introduction. So the right option is option C, that is acknowledgement. The acknowledgement section is dedicated to recognizing the contributions of others, जो contribution है others का उसको आप acknowledgement section जो है उसमें आप जो है वो देते हैं, उसमें आप उनका जो है वो जिक्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लीड पैराग्राफ इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट में जो लीड पैराग्राफ है वो क्या है? व्हाट इज रीड पैराग्राफ इन रिपोर्ट? सो देयर आर 4 ऑप्शंस एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इंक्लूड्स डिटेल ऑफ द इंसिडेंट इन क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजी में जो इंसिडेंट है उसको डिटेल ऐड करते हैं हम लीड पैराग्राफ में। एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, लीड पैराग्राफ जो है वो क्या है आपका ओपनिंग पैराग्राफ जो होता है उसको हम लीड पैराग्राफ बोलते हैं, और इस पैराग्राफ में हम क्या करते हैं जो इंसिडेंट है उसकी क्रोनोलॉजिकल डिटेल देते हैं। लीड पैराग्राफ of a report summarizes the who, what, where and when to the event in the order of happening। ये ऑर्डर है आपका रिपोर्ट का, who कौन, what क्या,
वेयर कहाँ पे कोई चीज़ हुई है, एंड व्हेन कब हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवॉर्ड इज मैंशनड इन। ये क्वेश्चन आपको पहले भी आया है। तो रिवॉर्ड का हम किस में मेंशन करते हैं, रिपोर्ट को हम मेंशन करते हैं नोटिस फॉर द ऑब्जेक्ट लॉस, जो चीज़ हमारी खो जाती है उसमें हम रिवॉर्ड जो है उसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर जो है, जो हम न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं, वो इसमें से कौन सा जो है उसका पार्ट नहीं है। तो सिंपल सा आंसर है, फोटो जो है वो लेटर का पार्ट कभी भी नहीं होता है। फॉर्मल लेटर कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट। फॉर्मल लेटर में टेक्स्ट, यहाँ पे एड्रेस आता है, डेट आती है, सैल्यूटेशन आती है, बॉडी ऑफ द लेटर आती है, बट फोटो जो है वो लेटर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ नोटिस। नोटिस का इनमें से कौन सा जो है वो नोटिस का फीचर नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज मिनट्स। And explanation is, minutes are the recorded notes of a meeting. मीटिंग मिनट्स जो है वो मीटिंग के साथ रिलेटेड है। अ नोटिस इज़ अ प्रायर अनाउंसमेंट, क्योंकि नोटिस जो है हम क्यों लिखते हैं, प्रायर पहले से ही कोई अनाउंसमेंट हमें करनी होती है। एंड इट कंटेन्स द, जिसमें कि डेट रहता है, हमारा टाइम रहता है, वेन्यू डिसाइड होता है, उसमें एजेंडा क्या रहेगा। लेकिन मिनट्स जो हैं वो हमारा किसी मीटिंग से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ लेटर टू द एडिटर इज। जो लेटर टू द एडिटर है वो कौन से टाइप का लेटर है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अ ऑप्शन सी, अ फॉर्मल लेटर। Letter to the editor. It is addressed to a professional, the editor, to discuss public issues. अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लेटर टू द एडिटर क्या है या किसको हम लिखते हैं। तो किसी प्रोफेशनल को लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ताकि हम कोई पब्लिक इशू जो है उसको डिस्कस कर सकें। रिक्वायरिंग अ फॉर्मल टोन एंड स्ट्रक्चर, और इसका जो स्ट्रक्चर और टोन रहेगी वो कैसी रहती है, फॉर्मल रहती है। Next question is question number 14. Suppose you are self-employed and want a salesperson. आप किसी कंपनी के ओनर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और आपको एक सेल्स पर्सन जो है वो चाहिए अपनी कंपनी के लिए, अपनी शॉप के लिए, या किसी भी रीजन के लिए, अपने बिजनेस के लिए। इन विच सेक्शन विल यू गिव योर एडवर्टाइजमेंट। तो आप कौन से सेक्शन में जो है वो एडवर्टाइजमेंट देंगे। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिचुएशन वैकेंट में आप जो है वो एडवर्टाइज करेंगे। सिचुएशन वैकेंट is used by employers looking for employees. Situation wanted is used by job seekers. जिसको जॉब चाहिए वो कौन सी सेक्शन में लिखेगा, सिचुएशन वांटेड में, और जो जॉब देने वाला है वो लिखेगा सिचुएशन वेकेंट में। तो इसको भी आप जो है वो नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ विल यू गैदर द कंटेंट ऑफ योर रिपोर्ट। अपनी रिपोर्ट के लिए आप कंटेंट कैसे गैदर करते हैं। तो ये जो चार ऑप्शन है, दैट ऑल ऑफ दीज आप आई विटनेस से भी, न्यूज़पेपर से भी, और थ्रू ऑन विटनेस इंसिडेंट आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। इंफॉर्मेशन फॉर रिपोर्ट्स कैन कम फ्रॉम विटनेसेस। आप विटनेसेस से ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स से ले सकते हैं, लाइक न्यूज़पेपर, एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आप कहीं खुद भी ऑब्जर्व करके रिपोर्ट जो है उसके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ नोटिस कैन बी ए displayed on board, b published in a newspaper. So the right option is option D, that is both A and B। नोटिस को हम क्या करते हैं, डिस्प्ले भी करते हैं बोर्ड के ऊपर, और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश जो है वो नोटिस किया जा सकता है। नोटिस आर टिपिकली डिस्प्लेड ऑन फिजिकल नोटिस बोर्ड, चाहे वो स्कूल का है, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, या उसको हम न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं। वाई, बिकॉज इट कैन रीच to a specific audience. Next question number 17, a notice should be in the form of। notice जो है उसको
किस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए शॉर्ट पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं उसको, सेंटेंस में नहीं लिखेंगे, फ्रेजेस में नहीं लिखेंगे। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इन शॉर्ट पैराग्राफ्स। While notice contains specific details, the body is usually written brief, concise paragraph format. Next question number 18. A notice can be about. Notice जो है वो किस बारे में हो सकता है? An upcoming event or competition, a lost and found notice, an information to be delivered to a particular group of people, and all of three. So the right option is D. And this is the explanation of this answer. Next question number 19. Which of the following presentation skills is required to prepare a report? रिपोर्ट प्रिपेयर करने में हमें कौन सी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमें रहती है? सो ऑल ऑफ दिस is the right answer, and this is the explanation of this answer, that effective reporting requires precision, keen observation, and inclusion of various perspectives for objectivity. Next, question number 20. A and dash is written to see information from other organization. Informal letter, inquiry letter, complaint letter, and adjustment letter. So the right option is option B, inquiry letter. Inquiry letter में आप क्या करते हैं? Information जो है वो gather करते हैं. So this is an inquiry letter is specifically designed to ask for details, prices, or information about service. Inquiry से नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि इंक्वायरी में हम क्या करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज लेटर रिटन टू द एडिटर रीच लिमिटेड ऑडियंस, द एडिटर ओनली, अ लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स, एंड इंडिविजुअल. तो जो हम लेटर टू द एडिटर लिखते हैं उसकी रीच, पहुंच कहाँ तक होती है, कहाँ तक वो पहुंचता है? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अ लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स, क्योंकि जितने भी लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उन तक वो जो लेटर है जो वो पहुंचेगा आपका. एंड द एक्सप्लेनेशन इज बिकॉज न्यूज़पेपर्स हैव वाइड सर्कुलेशन, क्योंकि न्यूज़पेपर की वाइड सर्कुलेशन है, हर जगह न्यूज़पेपर जाता है, इसीलिए अ लेटर टू द एडिटर अलाउज एन इंडिविजुअल टू शेयर देयर व्यूज़ विद द जनरल पब्लिक. से आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं. Question number 22. Notice writing is which type of communication? So the right option is option A, formal means of communication, and this is the explanation of this question. This video is going to be very long, but still you have be patient and watch the entire video so that you will be able to answer each and every question in your exam, because all these questions have been asked in the examination previous exams. So there will be chance that you will get some of these questions in your exam this year as well. Next question is question number 23. An advertisement is a message carried in the various forms of media such as. जो एडवर्टाइजमेंट हम लिखते हैं या जो मैसेज, उसका मैसेज जो है वो कौन कौन से फॉर्म में मीडिया तक जो है वो जाता है, तो उसको हम किस तरह से पहुंचा सकते हैं? न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के थ्रू, रेडियो टेलीविज़न के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, या ऑल ऑफ दीज. तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है उसको किसी भी तरह से हम पहुंचा सकते हैं इन तीनों तरीक़ों से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रीहेंशन मीन्स. कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब है? सो द राइट ऑप्शन इज, कॉम्प्रीहेंशन में हम क्या करते हैं? पैराग्राफ को रीड करते हैं एंड उसको हम क्या करते हैं? इवेलुएट करते हैं, ताकि ऑन द basis of our evaluation we can answer the questions that asked in the comprehension. Next question is question number 25. Which of these is the most suitable way to write the body of a notice? नोटिस की बॉडी लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो नोटिस में हम कैसे स्टार्ट करते हैं? दिस इज़ टू इन्फॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ टू इन्फॉर्म इज़ द स्टैंडर्ड
opening line of a notice. Next question is what is written on the top of a notice. नोटिस के सबसे टॉप में जो है वो क्या लिखा जाता है, द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जाता है जो नोटिस इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अ रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। तो रिपोर्ट जो है हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, what is written on the top of editor's letter on the left side। लेफ्ट साइड में लेटर टू द एडिटर के सबसे टॉप पे जो है वो क्या लिखा जाता है, सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सैल्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज प्लेस्ड बिलो सेंडर्स एड्रेस इन अ लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में सेंडर्स एड्रेस के बिलो क्या लिखा जाता है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, डेट लिखी जाती है, डेट के नीचे रिसीवर्स एड्रेस, उसके नीचे सब्जेक्ट, उसके नीचे सैल्यूटेशन। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट मूविंग, क्वेश्चन नंबर 30, ऑफिशियल लेटर्स डू नॉट इंक्लूड। ऑफिशियल लेटर में क्या इंक्लूड नहीं है, सो द राइट ऑप्शन इज एप्लीकेशन फॉर जॉब, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट सेक्शन इन लेटर राइटिंग। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो ऑफिशियल लेटर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्लोजिंग अ लेटर टू अ क्लोज रिलेटिव इज। क्लोज रिलेटिव को जो हम लेटर लिखते हैं उसको हम किस तरह से क्लोज करते हैं, तो किस तरह से हम उसको क्लोज करते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर जो राइट ऑप्शन है दैट इज योर्स, अफेक्शनेटली करके हम उसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इज अ पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द बाईलाइन इन आर्टिकल राइटिंग। बाईलाइन क्या है आर्टिकल राइटर में, नेम ऑफ द राइटर। जो बाईलाइन होती है आर्टिकल राइटिंग में, बाईलाइन से हमें पता चलता है कि जो आपका आर्टिकल है वो किसने लिखा है, उसका ऑथर जो है वो कौन है। द बाईलाइन टेल्स द रीडर हु रोट द आर्टिकल, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, and this is the last question, what is the general purpose of writing a report। रिपोर्ट का क्या पर्पस है, जनरल पर्पस क्या है, टू इन्फॉर्म, लोगों को इन्फॉर्म करना, परसुएड, उनको परसुएड करना, एंड इन्फ्लुएंस, उनको इन्फ्लुएंस करना। सो रिपोर्ट आर डिजाइंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड डेटा टू हेल्प रीडर्स, ताकि रीडर्स को हेल्प कर सके, टू मेक देम टेक डिसीजन एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सो these are the 34 questions from this section, that is creative writing skill. Because students find this section very difficult, they have no idea from where these questions have been asked, but I have tried my best to solve your problem, so it will help you in your exam if you watch this video carefully. And for more videos on MCQs, keep watching this channel, and also subscribe, share, and hit the bell icon so you can get the information of upcoming videos. Thanks for watching.